Hello everyone. How are everyone doing? So today we are joined by a very special guest, Samanika Rawat. She is a career coach, career consultant, mentor, and have also been recommended for Indian Army JAG entry. In the coming future, we are very confident. She is going to be also a LinkedIn influencer also. So welcome, Samanika. It's great to have you on the Career Vidya podcast. Thank you, Shashank. Hello, everyone. Yes. So starting for the podcast, we are going to keep it very organic. So Samanika, if you could, help us share your journey so far. How did you got into the field of career consulting, especially in the legal side? Okay. So, Shashank, I'm from Dehradun and I did my schooling in Dehradun only. So, as you might be aware of, Dehradun is famous for school level education. All the big fancy CBSE and ICSE schools are here. You might have heard of Vellum Boys, Vellum Girls, Doon School, Doon International School, and similar ones. But for graduation level, we did not have very famous colleges here. So, I wanted to get an understanding of how people from pan India look like, talk like, and like what does the diversity actually feel like. So I decided to step out of Dehradun for my graduation. I was a science background student, but I didn't want to continue with science. So जैसे बोलते हैं ना जिसका कुछ नहीं होता वो लॉ करता है. एक्चुअली मैं वो थी बिकॉज साइंस करके बीएससी में जाना नहीं था. बीबीए पापा ने मना कर दिया था एंड बीकॉम कर नहीं सकते थे. सो एंड बीए ऑल्सो उस टाइम पे आइडिया नहीं था क्या होगा कैसा होगा. So I was told that do a 5-year honors course instead of a 3-year graduation course because 3-year graduation course के बाद बहुत ज़्यादा chances ऐसे हैं कि job security अभी इंडिया में नहीं होती. Mostly people go for PG courses. So I was told that instead of going for 3-year course and then doing a 2 years PG, why not to go for 5 years honors course. That was when I was told about CLAT exam and NLUs. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि कितना पे करेंगे सैलरी कितनी होती है एनएलयू में पढ़ के बिकॉज आप बोल रहे हो इतनी मेहनत करके एग्जाम क्लियर करना है तो विल इट बी वर्थ इट और नॉट. नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड ओनली हर्ड दैट वन ऑफ माई रिलेटिव वाज अ नर्स in a government hospital and she was making somewhere around 25-30K. So I said इतने में तो नहीं चल पाएगा आज की जनरेशन में. So based on that I had chosen कि ठीक है. And my teacher gave me this incentive. My tuition teacher said go for law because जो NLS बैंगलोर है ना इंडिया का बेस्ट कॉलेज समाना का वहां तो क्लासरूम्स में AC होता है, ड्रेस कोड नहीं होता है एंड टीचर्स बहुत लिबरल होते हैं. मतलब स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलती है. So I was like, wow, ऐसे colleges भी होते हैं. So that's how like law had happened. Then, of course, after law school, I was a corporate lawyer briefly. And during pandemic, when I was preparing for my JAG SSB, that was when I got a call from Law Seco, which was my previous place of employment. They wanted me to make a course on construction arbitration because I was a construction lawyer in Mumbai prior to that. And I just visited their office for 2 weeks. I thought I'll complete the course. And बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में एक्चुअली मैंने अपनी ब्लैक साड़ी खरीद ली थी और ब्लैक कुर्ते खरीद लिए थे फॉर नैनीताल हाई कोर्ट. आई वाज एक्चुअली प्लानिंग टू गो टू नैनीताल टू प्रैक्टिस लिटिगेशन. But I thought I'll just finish their course, and in between they just offered me a job. उसी टाइम पैंडेमिक भी लगा. I was asked to start their placement vertical from scratch. This was in edtech sector, one of the most leading edtech sectors in legal field. एंड वहां से मेरी ये जर्नी शुरू हुई. सो एक्चुअली आपका क्वेश्चन का मैंने थोड़ा सा लेंदी आंसर इसलिए दिया बिकॉज मेरी जर्नी डायरेक्ट करियर कोचिंग से नहीं हुई. मेरी जर्नी पहले अलग अलग पार्ट्स में थी. ड्यूरिंग लॉ स्कूल ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू ड्रीम अबाउट ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म, द ब्लू यूनिफॉर्म, द व्हाइट यूनिफॉर्म फौज की. तो इसीलिए डिस्पाइट बीइंग अ पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट कमिटी फॉर 3 years, आई वाज द ओनली फीमेल पर्सन देयर. बट आई वाज नॉट सिटिंग फॉर प्लेसमेंट्स. हमारा बिकॉज आई एम फ्रॉम एनयूजेस जो इंडिया का 3rd बेस्ट एनएलयू है, तो वहां पर 4th ईयर के ही एंड में प्लेसमेंट्स हो जाते हैं. बट मेरे केस में ऐसा था कि आई वाज नॉट सिटिंग फॉर प्लेसमेंट्स टिल द एंड ऑफ माय 5th ईयर बिकॉज आई वाज लाइक मुझे तो फौज में ही जाना है.
बट फौज नहीं हुआ, तो एट द एंड आई जस्ट सैट फॉर वन फॉर्म. लकीली आई गॉट थ्रू. And this entire experience of being a part of recruitment committee for 3 years, having spoken to so many recruiters, being able to secure a job despite not being in top 10 people sitting for that job, and मुझे HR राउंड में ही ऑफर मिल गया था. बाकी जो मुझसे काफी हाई ग्रेड स्टूडेंट्स थे मेरे बैच के, जिनकी बहुत अच्छे प्लेसमेंट, बहुत अच्छी इंटर्नशिप्स थी, बहुत अच्छा सीवी था, उन लोगों ने टेक्निकल राउंड इंटरव्यू भी दिया, फिर भी उनको वो जॉब नहीं मिली. तो कहीं ना कहीं मुझे पूरा सिस्टम समझ में आया कि द एंटायर गेम ऑफ रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, हायरिंग, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड ह्यूमन साइकोलॉजी, कि कैसे आप उनको ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट करते. एंड देन शशांक, जब मैं अपने एसएसबी की तैयारी करने लगी, व्हेन आई गॉट रिकमेंडेड और स्क्रीन आउट और कॉन्फ्रेंस आउट, मैंने हर तरीके का टेस्ट लिया एसएसबी का, तो वो पूरे एक्सपीरियंस ने मुझे और इस चीज को कंफर्म करा कि कितना हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है in deciding our future. So that's how I happened to become a career coach while continuing being a JAG aspirant. Brilliant. I think one of the things that is similar is मैंने भी SSB दिया है. मेरा भी conference out का experience रहा है, screening out का experience रहा है, and I have been recommended once also. तो और फिर मेडिकली अनफिट, बट वो मतलब वो एक स्पार्क रहता है, राइट, कि यू वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, फॉर योर फ्रेंड्स, एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग. एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन रिकमेंडेड, दे हैव दैट एक अच्छा इंसान अंदर रहता है, whose energy is helping people out, and I think that's why they tend to become lot of career consulting, career coach, right? और मेरे एक्सपीरियंस से मैंने किसी भी फौजी से अगर पूछा है, हेल्प मांगी है, उन्होंने पूरा चिट्ठा खोल के बताया है, ऐसे कर वैसे कर वैसे कर, एंड दे हैव ऑलवेज गाइडेड मी. सो आई थिंक ट्राइब ही अलग होती है, एक्चुअली ट्राइब ही अलग होती है. आई हाँ जी. रिमेम्बर अभी मेरी जो लास्ट एसएसबी थी, उसमें ऑन द फाइनल डे ग्राउंड टास्क में हम दो लोग बहुत ज्यादा मेडिकली ड्रेन हो गए थे. एक लड़की ऊपर डबल डिच से गिर गई थी और उनके बैक में चोट लग गई थी. दूसरा मेरा बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन का केस हो गया था, एंड वी बोथ हैड टू बी टेकन टू एमएच. वेरी इंटरेस्टिंगली शशांक, वाइल मतलब अगर कॉर्पोरेट की बात की जाए, बाहर की बात की जाए, तो हर कोई अपना सोचता है या बाकियों को गाली देता है या बाकियों के लिए बुरा सोचता है, अरे यार उसकी वजह से ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ. बट फौज का वो ट्राइब, इतना भीड़, जो मतलब वो जो लोग आते हैं ना, वो इतनी डिफरेंट क्राउड आती है कि आप कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते, आप हमेशा दूसरे के बारे में सोचते हैं. मैं जब एमएच से बाहर निकली, मेरे दिमाग में कॉन्टिन्यूसली उसी का ध्यान रहा कि यार वो ठीक होगी. आई एम नॉट एबल टू गेट इन टच विद हर बिकॉज आई एम सराउंडेड बाय men in uniform, but would she be fine? And few months later I got a LinkedIn request from the same girl saying that, Samanika, I felt so sad because this was your such a big dream. We had just one conversation before a ground that day, and मुझे अपनी बैग से ज्यादा तुम्हारी चिंता हो रही थी that तुम्हारा एक और अपॉर्चुनिटी मिस हो गया because you got dehydrated. तो वो हमारा फौज की जो कम्युनिटी वाले लोग होते हैं ना, वो एक्चुअली जब आप उन गेट के को क्रॉस करके एक बार अंदर जाते हैं ना, चाहे आप स्क्रीन आउट होके आए, चाहे आप कॉन्फ्रेंस आउट होके आए, चाहे आप रेकमेंड होके आए, यू आर नेवर द सेम पर्सन. यू कैन नेवर बी द सेम पर्सन. वो आपको बिल्कुल मतलब वो थोड़ा सा वहां की हवा और पानी आपको कंप्लीटली बदल देती है. एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर पीपल, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हेल्पिंग अदर पीपल. Brilliant. I think completely relate to it. So Samanika, moving ahead, हमको तो यही पता रहता है, राइट, कि एलएलबी होता है, राइट, जॉली एलएलबी लॉ, मतलब अगर लॉयर बनना है तो डिग्री एलएलबी होती है, राइट. व्हाट इज योर टेक? एलएलबी के अलावा और कौन कौन सी डिग्रीज होती है जो कि हमें लॉ के करियर में डायरेक्शन दे सकती है, और मास्टर्स भी हम किस चीज में स्पेशलाइज कर सकते हैं? शशांक, पहले तक क्या होता था, केवल 3 इयर्स का कोर्स होता था जो कि एलएलबी होता था, ग्रेजुएशन के बाद आप करते थे. बट अभी ज्यादा फोकस 3 इयर्स से ज्यादा 5 इयर्स प्रोग्राम पे है, ऑनर्स प्रोग्राम पे. बीए एलएलबी, बीबी एलएलबी मेन वेरिएंट्स होते हैं. काफी कॉलेज बीकॉम एलएलबी, अभी तो बीटेक एलएलबी भी ऑफर करे, बट मेन वेरिएंट्स आर मेन इज बीए एंड बीबी एलएलबी. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का होता है, बट ऐसा नहीं है कि बीए एलएलबी वाला बीबी एलएलबी वाले सब्जेक्ट्स में लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, और वाइसी वर्सा. तो डिफरेंस ये है शशांक कि 3 ईयर का जो कोर्स होता है वो एक बहुत शॉर्ट पीरियड हो जाता है, बिकॉज लॉ में जो थ्योरी है वो तो उसकी अपनी वैल्यू एक तरफ है, लेकिन जो प्रैक्टिकल साइड है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू अलग है.
एंड इसीलिए बार काउंसिल फोकस करता है बहुत ज्यादा इंटर्नशिप्स पे, कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते रहेंगे, इंटर्नशिप्स करते रहेंगे, उतना ज्यादा आप लॉ को जानते रहेंगे। तो जो 3 ईयर का कोर्स का स्टूडेंट होता है, वो फर्स्ट ईयर में बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ रहा होता है, वो समझ रहा होता है। सेकेंड ईयर आते आते उसमें ये प्रेशर बिल्ड होने लग जाता है कि थर्ड ईयर के बाद मुझे जॉब चाहिए, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो एक 3 ईयर एलएलबी के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टाइमलाइन कम हो जाता है टू एक्सप्लोर कि लॉ में क्या क्या ऑप्शन है। एंड लॉ की एक बहुत प्यारी ब्यूटी ये है शशांक, कि किसी भी ऐसे फील्ड में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप किसी भी, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पर्सनल लाइफ में, आप उससे लॉ को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने लिए करियर बना सकते हैं। हम्म, और कोई ऐसा नहीं कर सकता। आपको खाना पसंद है, आप जोमेटो की एक लीगल टीम होगी, वहां काम कर सकते हैं। आपको घूमना पसंद है, मेक माई ट्रिप इंडिगो की एक लीगल टीम है, वहां काम कर सकते हैं। आपको म्यूजिशियन बनना था, एक्टर बनना था, बट आप नहीं बन पाए फॉर वट एवर रीजन, मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप वहां लॉयर बन सकते हैं। तो ये लॉ की ये अकेला फील्ड है जिसमें इसकी इतनी ब्यूटी है कि आप किसी भी फील्ड से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और उस फील्ड के एक स्पेशलाइज्ड लॉयर बन सकते हैं। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी तभी मिलती है अगर आपके पास ज्यादा टाइम होता है एक्सप्लोर करने का, बिकॉज आपकी कोर्ट इंटर्नशिप्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जजेस के साथ जुडिशियल क्लर्कशिप इंटर्नशिप्स हो गई, इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, एनजीओज हैं, लीगल एड क्लिनिक्स हैं, एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ इन हाउस काउंसिल कंपनीज। तो इसलिए वो सारा एक्सप्लोर करने के लिए जो है 5 ईयर का कोर्स ओवर 3 ईयर कोर्स ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। बाकी दीज आर द टू मेन वेज इन विच यू कैन एंटर लॉ। दूसरा होता है शशांक कि जैसे आजकल कुछ नए एरियाज हैं जहाँ पे आप अपनी ही फील्ड में कंटिन्यू करते हैं, बट आपको साइड बाय साइड अगर लॉ का नॉलेज है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। बिकॉज कंट्री में तो किसी को भी अगर लॉ का नॉलेज है तो उनके लिए और उनकी सोसाइटी के लिए बहुत हेल्पफुल हो ही जाता है। जैसे माना जीडीपीआर है, डेटा प्रिवेसी। तो डेटा प्रिवेसी के लिए जरूरी नहीं है कि केवल टेक्नोलॉजी लॉयर्स को ही जीडीपीआर का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। काफी सारे आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, या स्पेशली टेक साइड में जितने भी नॉन लीगल प्रोफाइल के लोग भी हैं, उनको भी जीडीपीआर का नॉलेज काफी हेल्पफुल होता है। तो उसके थ्रू आप कोर लॉ में तो नहीं आएंगे, लेकिन यस, व्हेन यू आर वर्किंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिस्टम बेटर, यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस दोज प्रोडक्ट्स बेटर। सिमिलरली जैसे आईपीआर में जब आते हैं तो आप कुछ कुछ भी नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें, पेटेंट्स, या काफी लोग पैटेंट बोलते हैं, अगर आप अपना लाना चाह रहे हैं, रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी अगर आपको बेसिक आईपीआर नॉलेज है वो हेल्पफुल होता है। अलग अलग डोमेन में अलग अलग तरीके के जो लॉज होते हैं उनसे ओवरलैपिंग स्पेशल लॉज, जैसे एचआरस होते हैं कंपनी के। अब एचआरस को लेबर लॉ एक सब्जेक्ट पढ़ाया ही जाता है, बिकॉज एम्प्लॉयज के साथ आप काम करोगे तो वो अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत काम आती है। हर फील्ड का एक्चुअली ऐसे थोड़ा थोड़ा जो स्पेशलाइज लॉज हैं उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत हेल्प करते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर आपको फिर भी लॉ में आना है और आपके पास लॉ की डिग्री नहीं है, तो आपके पास एक आर्बिट्रेशन का ऑप्शन बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि आर्बिट्रेटर्स के लिए जरूरी नहीं है कि आप रिटायर्ड जज ही हो, या रिटायर्ड मतलब या एक प्रैक्टिसिंग लॉयर ही हो, अगर आपका एक डिसेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहता है। बिकॉज आर्बिट्रेशन जो है शशांक, वो एक क्वाजाई जुडिशियल मॉडल बोलते हैं। क्वाजाई जुडिशियल मतलब जो कि स्ट्रिक्टली जुडिशरी नहीं है, सेमी जुडिशरी मॉडल एक तरह से, अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बोलूं, तो उसमें दोनों पार्टीज डिसाइड करती है कि हमारे जज कौन होंगे, हमारे आर्बिट्रेटर कौन होंगे। जज मतलब यहाँ पे आर्बिट्रेशन के मॉडल में आर्बिट्रेटर। तो वो आर्बिट्रेटर जरूरी नहीं है कि वो एक रिटायर्ड जज ही हो या एक लॉयर ही हो। उसमें मैंने देखा है कि जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, क्योंकि मैक्सिमम हमारे आर्बिट्रेशन होते हैं, तो रिटायर्ड सिविल इंजीनियर्स जो हैं वो भी एज आर्बिट्रेटर्स बैठते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अनदर वे इन विच प्रोफेशनल्स, इफ दे वांट टू enter into the field of law without actually having full-fledged 3 year or a 5 year degree, then through the experience and expertise in their own field, they can join the system. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये आर्बिट्रेशन होता क्या है स्पेशली कंस्ट्रक्शन फील्ड में? आर्बिट्रेशन बेसिकली आउट ऑफ कोर्ट हमारा वो एक सेटलमेंट मॉडल होता है, आपका स्पीडी सेटलमेंट मॉडल। फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सो डिस्प्यूट है, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में क्योंकि प्रोसीजर फॉलो होगा कुछ सर्टेन, अब कोर्ट में पेंडेंसी भी चल रही है केसेस की, तो आपको टाइम लगता है चीजें सॉल्व होने में। एंड जहां पे पार्टीज को लगता है कि नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वी वांट टू हैव स्पीडी डिसीजंस, तो दे प्रेफर टू गो फॉर आर्बिट्रेशन, कि पहले एक आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं, क्या पता, क्योंकि दोनों पार्टीज हैव टू अग्री
कि हु विल बी योर आर्बिट्रेटर। तो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड इंक्लाइंड होगा। तो इसीलिए जब आर्बिट्रेटर कुछ कुछ प्रोसीजर्स वो स्किप कर देते हैं बिकॉज क्वाजाई जुडिशियल है, उतना स्ट्रिक्टली आपको जैसे जो हमारा सिविल प्रोसीजर बोलता है या एविडेंस एक्ट बोलता है उतना स्ट्रिक्टली आपको फॉलो नहीं करना पड़ता। तो थोड़ा सा वहां पे आपको एक स्पीडी वे में आपको पता चल जाता है कि किसके फेवर में डिसीजन जा रहा है। उसके बाद भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑब्वियसली आप कोर्ट जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का केस में ये शशांक, कि अब एक एक तरह से एक ये रूल भी है कि बड़े कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में मैंडेटरली आपको एक आर्बिट्रेशन का क्लॉज रखना पड़ता है। मतलब कि आप और मैं अगर किसी भी कमर्शियल डील के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जहाँ पे एक डिसेंट अमाउंट हमारे बीच में कंसिडरेशन है कि मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ तो आप मुझे इतना अमाउंट ऑफ मनी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पे करेंगे। तो अगर हमारे बीच में डिस्प्यूट होता है तो हम पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि हम कोर्ट जाने से पहले आर्बिट्रेशन में जाएंगे जो कि इस सिटी में होगा, इस सिटी के अंदर होगा। लाइक सीट एंड जुरिस्डिक्शन हम पहले से बता देते हैं। तो उस तरीके से क्या होता है कि एकदम माना अगर डिस्प्यूट हो गया तो आप एकदम कोर्ट नहीं भागते हो। एंड दूसरा चीज कंस्ट्रक्शन में तो मैंडेट ही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है जैसे हाईवे बन रहा है, रोडवेज बन रहे हैं, या आपके फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, आपके एयरपोर्ट्स बन रहे हैं ना, ये नेशनल इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें टाइम जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। सरकार आती है, सरकार प्रॉमिस कर देती है 2.5 साल में मेट्रो लाइन आ जाएगी, 15 साल में ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो ये जो कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट होते हैं इनमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब माना आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि समानिका देहरादून में मेट्रो बनानी है, ठीक है, तुम हमें 5 साल में बना के दो। अब मैंने मेट्रो की खुदाई करी, थोड़ा सा आगे निकले, किसी ने बोल दिया कि अरे यहाँ से तो हमारा पाइपलाइन ही फट गई पानी की, हमारे पूरे मोहल्ले का पानी यहाँ से आ रहा था। वो हाईकोर्ट भाग गए स्टे ऑर्डर लेने के लिए कि यहाँ से आगे कंस्ट्रक्शन नहीं बढ़ेगा। थोड़ा सा मैं आगे बढ़े, किसी ने बोला अरे मेरे घर तो कुआं था, कुएं से मैं ड्राई क्लीनिंग का पानी निकाल रहा था, इन्होंने इतनी मिट्टी पैदा कर दी सड़क में खुदाई कर करके कि मेरे कुएं का पानी गंदा हो गया। अब मेरे ड्राई क्लीनिंग का जिस क्वालिटी ऑफ वाटर से मैं कर रहा था वो क्वालिटी नहीं। तो ऐसे हर स्टेप स्टेप पे लोग तो स्टे ऑर्डर लाते रहेंगे, तो मेरा भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा। एक तो ये, दूसरी वजह से क्या होगा कि मैं अगर वो कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ आपका प्रोजेक्ट, अब आपने तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया, अब इतने बीच बीच में स्टे आते रहेंगे तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कुछ न किसी चीज की वजह से डिले होता रहेगा। दूसरा, आपके और मेरे बीच में भी बीच बीच में झगड़े होते रहेंगे कि भाई अब ये जो बीच में आ गया कॉम्पनसेशन मांगने स्टे ऑर्डर लेके, इसको कौन पे करेगा? आप बोलोगे तुम करो क्योंकि तुमने खुदाई करी है, मैं बोलूंगी आप करो क्योंकि आपको तो पता था यहाँ से पाइपलाइन जाने वाली है या मेट्रो की लाइन जाने वाली है। तो इस तरीके के छोटे छोटे नोकझोंक वाले जो डिस्प्यूट्स हैं वो बीच बीच में आते रहते हैं। तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन के केस में ये बहुत क्लियर रहता है कि हम बीच में कोर्ट नहीं जाओगे, दोनों पार्टीज को प्रोजेक्ट पूरा करना है, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है, पूरा देश उस प्रोजेक्ट का वेट कर रहा है। तो इसीलिए फिर टुवर्ड्स द एंड आपका जितना 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 डिस्प्यूट बनता रहता है, और वो फिर अप टू 50 करोड़, 200 करोड़, 600 करोड़ के भी हमने आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट्स देखे। तो इतना उसका डिस्प्यूट अमाउंट चला जाता है एंड देन दे फर्स्ट गो टू द आर्बिट्रेटर। अगर वहां पे आर्बिट्रेशन से वो सेटिस्फाइड नहीं होती पार्टीज, देन दे गो टू द हाई कोर्ट। तो इसमें प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं बट आर्बिट्रेशन प्रोजेक्ट पूरा साइड कंप्लीट हो, प्रोजेक्ट पूरा होता आर्बिट्रेशन है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद शुरू। अच्छा, तो मतलब प्रोजेक्ट पहले हो जाएगा, बाद में आपको प्रोजेक्ट, कंपनसेशन हाँ वगैरह मिलता रहेगा। हाँ ओके। हाँ, क्योंकि वो सरकार के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना, लेकिन हाँ हाँ प्रोजेक्ट हाँ। देश के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट पूरा होगा, आप हम्म, बीच में प्रोजेक्ट नहीं रोक सकते, कॉन्ट्रैक्टर बीच में प्रोजेक्ट नहीं रोक सकते। अच्छा अच्छा, ब्रिलियंट। ये चीज तो हमको पता ही नहीं थी। आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि हाईवे बन रहा है तो गांव के लोग क्यों नहीं आ रहे बीच में, किसी के रकबे हाँ, से जा रहा है तो व्हाई इज ही नॉट प्रोटेस्टिंग, या फिर व्हाट इज द नहीं वो मैकेनिज्म देयर। आते हैं, वो आते लोग तो हैं। आते हैं, लोग आ सकते हैं, लेकिन हम्म, आपस में एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर नहीं भिड़ सकते। तो लोग अच्छा। आते हैं, इसीलिए तो हमारे प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं। मतलब हम्म। मैं मुंबई मेट्रो के मुंबई मेट्रो यूज्ड टू बी आवर क्लाइंट व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग एज अ कंस्ट्रक्शन लॉयर। तो हम्म एवरी वीक देयर वाज अ न्यू नोटिस, एक नए तरीके का, किसी के कुएं का पानी गंदा हो गया वो स्टे ऑर्डर के लिए चले गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, कोई चलते चलते फिसल गया, चोट लग गई उसके, अब उसने बोला तुमने गलत तरीके से वार्निंग नहीं लगाया था, अब तुम मुझे भी डिस्प्यूट वो दो, मतलब कॉम्पनसेशन दो। तो ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के केसेस हैं, इसीलिए हमारे देश के प्रोजेक्ट भी थोड़े से टाइमलाइन से आगे पीछे हो जाता
Brilliant. Thanks for wonderful insights into it. अब तो मेरे को ये जानना था डोमेन्स क्या क्या होते हैं लॉ में. मैंने सुना है एनवायरमेंटल लॉ होता है, फिर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, एक कॉर्पोरेट लॉ होता है. ऐसे कौन कौन से डोमेन्स रहते हैं, एंड ऐसा कौन सा डोमेन है जो अभी बहुत ही हॉट टॉपिक है, या विच इज गोइंग टू बी द यू नो आई वुड से डोमेन ऑफ इंटरेस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट्स. हाँ जी. सुशांक, वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आई वाज प्लानिंग टू कंपाइल लिस्ट, एंड कॉलेज में जब हम रहते हैं तो हमें दो ही चीज पता होती है, लिटिगेशन और कॉर्पोरेट. तो बच्चे इस तरीके से डिसीजन लेते हैं कि कोर्ट जाना है कि कोर्ट नहीं जाना. आपके पिताजी लॉयर या जज हैं तो आप सोच सकते हो लिटिगेशन जाने के लिए, और पिताजी नहीं है, फर्स्ट जनरेशन हो, तो आप सोचोगे मैं पहले पैसा कमा लूं, एजुकेशन लोन कर लूं. ये कॉमन सोच होती है, जो कि बहुत बड़ा मिथ है शशांक. क्योंकि जब आप 5 साल का BA LLB कर रहे होते हैं ना, तो उसमें जब आप 6 सेमेस्टर के पास आते हैं अपने, उसको मिड लॉ स्कूल क्राइसिस एक टर्म दिया जाता है कि एवरीबडी स्टार्ट्स थिंकिंग व्हाट एम आई डूइंग विद माय लाइफ. मेरे पास दो ही ऑप्शन है, बट एक्चुअल में वो दो ऑप्शन नहीं होते. लिस्ट बहुत लंबी है शशांक. मतलब अभी अगर मैं बताने लगूं तो 50 to 70 तो मैं आपको जस्ट ऐसी वर्बली बता दूंगी. क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि हर फील्ड से रिलेटेड एक लॉ है. तो लॉ में क्या होता है शशांक, जैसे कुछ होते हैं आपके जनरल लॉज, जैसे इंडियन पीनल कोड हो गया, जो क्रिमिनल लॉ, जो आप सुनते हैं कि इतनी धारा लग गई, धारा 302 लग गई, धारा 340 लग गई, ये लग गया, वो लग गया. ठीक है, वो होते हैं आपके जनरल लॉज. फिर आपकी इंडस्ट्री वाइज बनते हैं स्पेसिफिक लॉज. जैसे आर्मी है तो आर्मी का अपना आर्मी एक्ट है, एयरफोर्स का अपना एयरफोर्स एक्ट है. ठीक है, तो इसी तरह से आप हर एक फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हैं. अब जैसे अगर किसी का माना स्पेस में इंटरेस्ट है, नासा नहीं जा पाए किसी भी रीजन की वजह से, एस्ट्रोनॉट नहीं बन पाए, वो स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो मतलब फील्ड हर जगह है आपका. केवल इन्वायरमेंट और जब मैं कॉर्पोरेट भी बोलता हूँ ना शशांक, बहुत बड़ी एक तरह से अम्ब्रेला है कॉर्पोरेट. शार्क टैंक आजकल की जनरेशन देख रही है, तो उसमें इक्विटी इक्विटी डेट डेट ये वर्ड्स बहुत सुने बच्चों ने, राइट. तो वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स, ये सब काफी मतलब ट्रेंडिंग हो गए थे बीच में. तो PE VC, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटलिज्म, ये भी लॉ में एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है. आप सेबी के बारे में, बच्चे शेयर मार्केट के बारे में जल्दी आजकल जानने लग जा रहे हैं स्कूल से निकलते ही, बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ न्यू वे ऑफ मेकिंग मनी. सो सिक्योरिटीज एंड कैप्स मार्केट एक अपना फील्ड है. ये सब कॉर्पोरेट के अंदर आते हैं. जनरल कॉर्पोरेट होता है, मर्जर्स. अब बड़े बड़े आप सुन रहे हैं, इसने उसको एक्वायर कर लिया, उसने उसको एक्वायर कर लिया, जोमेटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर कर लिया, तो वो पूरा मर्जर्स एंड एक्विजिशन फील्ड में आता है. ऐसे कॉर्पोरेट में बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं. सिमिलरली जब हम लिटिगेशन की बात करते हैं, तो दिमाग में या तो जॉली LLB आता है, या अदालत अदालत तारीख पे तारीख आती है. बट एक्चुअल में उस तारीख पे तारीख के भी बहुत सारे वेरिएंट हैं. जैसे एक तो आपका ट्रेडिशनल हुआ सिविल क्रिमिनल, जिसमें आपका प्रॉपर्टी लॉ, फैमिली डिस्प्यूट हो गया. देन आपका स्पेशलाइज्ड लिटिगेशन भी होता है, कमर्शियल लिटिगेशन भी होता है. जैसे कोई ऐसा इंसान है जिसको कॉर्पोरेट चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है, बट कोर्ट में आर्ग्यू भी करना है, क्लाइंट्स को एडवाइस भी करना है, जजेस के सामने अपना आर्ग्यूमेंट भी रखना है ना, केवल डेस्क जॉब नहीं करनी, एडवाइसरी रोल. तो उनके लिए कमर्शियल लिटिगेशन का भी ऑप्शन है. जैसे कंपनी, जब एक कंपनी की पूरी लाइफ होती है ना, नया स्टार्टअप शुरू हुआ, इन्वेस्टमेंट लिया, काफी ग्रोथ पे गया, एंड देन डिप में आते आते इंसॉल्वेंट डिक्लेयर. तो वो जो इंसॉल्वेंसी वाला स्टेज आता है, बैंक्रप्सी वाला स्टेज आता है, आर्बिट्रेशन वाला स्टेज आता है, जब डिस्प्यूट्स में जाती है कंपनी, तो दैट इज इन कमर्शियल लिटिगेशन पार्ट. तो वहां पे भी आपके पास ऑप्शन है. जब लिटिगेशन में मैं और ऑप्शन आपको बोलूं, IPR में ही प्योर लिटिगेशन आपको मिलेगा, टैक्स में लिटिगेशन है, टैक्स में नॉन लिटिगेशन भी है. तो ऐसे मतलब हर एक फील्ड. हम कॉलेज में 50 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिनमें से 40 मैंडेटरी होते हैं, और 35 एक्चुअली मैंडेटरी होते हैं, और बाकी हमारे ऑप्शनल्स होते हैं. तो ऑप्शनल जो मैंने नहीं भी पढ़ा शशांक, वो भी आई कैन प्रैक्टिस. अब आप पूछ रहे हो कि फिर उसके बाद आता है नीश एरियाज, जो आज की डेट में ग्रोइंग है. जैसे ऑफ कोर्स अच्छा, इसमें बिफोर गिविंग द नेम्स, बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग फॉर, सामान का फटाफट बताओ ना वो कौन से फील्ड है जहाँ जहाँ पैसा मिलेगा. तो इससे पहले कि मैं वो आंसर करूं, मैं थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ कि लॉ में ना एक वेव आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग. हर फील्ड में ही आती है वैसे तो, बट यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग वेव आती है. एक टाइम था कुछ साल पहले जब सबको कंपटीशन लॉयर बनना था, एंटी ट्रस्ट लॉयर, सबको कंपटीशन लॉयर बनना.
ठीक है, जब ओला उबर इंडिया में आए थे एंड लाइक एवरीबडी यूज टू गिव द एग्जांपल ऑफ हर पेप्सी के लिए कोका कोला होना जरूरी है, हर ओला के लिए एक उबर होना जरूरी है, तो उस टाइम पे सबको कंपटीशन लॉयर बनना था। उसके बाद वेव आई शशांक आर्बिट्रेशन की, कि भाई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करेंगे, क्योंकि हम गोवा में बीच पे बैठ के भी कर सकते हैं, हमें ब्लैक एंड व्हाइट ही नहीं पहनना कोर्ट जाके, ठीक है। तो फिर वो वेव आई। उसके बाद लॉकडाउन से जस्ट पहले आईबीसी की वेव आ रही थी, बिकॉज मोस्टली जितने भी सीनियर लिटिगेशन प्रोफेशनल्स हैं वो सेटल्ड है अपनी अपनी प्रैक्टिस में, सिविल क्रिमिनल में। वो उन्होंने आईबीसी ज्यादा एनसीएलटी का जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करती, तो इसीलिए यंगर जनरेशन को लगा कि भाई यहाँ चले जाते हैं, यहाँ अपना ब्रांड बन जाए। अभी वो वेव आईबीसी की आ ही रही थी, तब तक लॉकडाउन लग गया और सरकार ने आईबीसी पोस्टपोन कर दिया। तो आईबीसी गॉट पोस्टपोन, तो इस वजह से क्या कहते हैं, फिर वेव शिफ्ट हो गई आईपीआर में। तो अभी ट्रेंडिंग वेव्स आर नीश एरियाज, आईपीआर है आपका, आपका कंपटीशन है, सिक्योरिटीज है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली टेक्नोलॉजी लॉ, बिकॉज हमारा इंडिया में जो डेटा प्रिवेसी लॉज है अभी तक कोडिफाइड नहीं है प्रॉपरली। देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ रिसर्च हैपनिंग, एंड जब से जैसे वर्क फ्रॉम होम ज्यादा शिफ्ट हुआ है तो उतना ही लोगों का और ज्यादा इंक्लिनेशन बढ़ रहा है टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी। ब्रीफली, मुझे पता है टाइम क्योंकि खत्म होने वाला होगा, तो टेक्नोलॉजी खुद में एक बहुत बड़ा वर्टिकल, एंड उसमें भी आप किसी भी एक पार्ट में एक्सपर्टीज गेन कर सकते हैं। जैसे फिनटेक आप अपने आप में ही, जैसे रेजर पे जैसी कंपनीज जो हम आजकल यूज करते हैं, फिनटेक एक वर्टिकल हो गया, जीडीपीआर जो डेटा प्रिवेसी है वो पूरा एक वर्टिकल हो गया, क्रिप्टो ब्लॉकचेन एक वर्टिकल हो गया, एंड आपका साइबर लॉस तो हमेशा से रहा ही, वो एक वर्टिकल। तो यू कैन हैव एन एक्सपर्टीज इन वन, जैसे आप डेटा प्रिवेसी लॉयर बन गए, बट ठीक है नहीं आता ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी, दैट्स फाइन। वेब3 ग्रो कर ही रहा है, आपको मालूम ही है, विद टाइम उसमें भी हमारा नया स्कोप मिल जाएगा। तो ऐसे मतलब हर एक फील्ड में आप बना सकते हैं। इन्वायरमेंट की आपने बात करी थी शशांक, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पहले इन्वायरमेंट को लोग यही सोचते थे कि यार इसमें तो केवल पीआईएल फाइल होंगी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पैसा कौन देगा। तो अभी इंटरेस्टिंग चीज ये हो गई कि इंडिया में ये प्रैक्टिस पहले नहीं थी, ईएसजी, इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस। तो ये प्रैक्टिस इंडिया में आ गए, विच मीन्स अभी इन्वायरमेंट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू पीआईएल्स, आप सोशल गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी बड़ी कंपनीज या फर्म्स डील्स में एंटर होने से पहले अपना डिलीजेंस करवा रहे। मतलब आपको अगर इन्वायरमेंट पसंद है, आप ईएसजी सेक्टर में काम करते हो, तो आपको ये नहीं रहेगा कि कल के दिन मुझे पैसा कौन देगा, मैं केवल पीआईएल्स ही फाइल करूंगा कि और भी चीजें करूंगा। बिकॉज थोड़ा सा शशांक, मुझे पता है आपका ध्यान घड़ी पे बहुत ज्यादा है, बट सोशल गवर्नेंस पार्ट में मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा हिंट दूंगी, क्योंकि इसके बारे में इंडिया में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। ये धीरन धीर लॉ फर्म है, उन्हीं ने पहले स्टार्ट किया ईएसजी प्रैक्टिस, अभी और टीम्स फर्म्स भी इसको ला रहे हैं। तो जैसे शशांक, माना कंपनी में हो रहा है मर्जर, ठीक है, तो अभी वो क्या करे, पहले तक हम क्या देखते थे एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा कितने लोग कहाँ जाएंगे, रिसोर्सेज, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, कितना इक्विपमेंट कहाँ से क्या जाएगा, मशीनरी एंड एवरीथिंग एल्स, राइट। बट सोशल गवर्नेंस का कोई नहीं सोचता था कि जेंडर रेशियो क्या होगा अगर दोनों कंपनीज मर्ज कर रही हैं, मर्ज्ड एंटिटी में, फाइनल एंटिटी में जेंडर रेशियो क्या होगा, या बाकी एस्पेक्ट्स जितने भी हैं सोशल गवर्नेंस के, वो किस तरीके से अफेक्ट होंगे। तो नाउ दैट इज समथिंग विच इज कवर्ड अंडर ईएसजी प्रैक्टिस, एंड विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब काफी नया है इंडिया में। तो आपकी ऑडियंस को अगर ये जानना है कि आज की डेट में क्या क्या है, पैसा शशांक सब जगह है, चाहे आप रियल एस्टेट में जाना चाहें, चाहे आप मर्जर्स में जाना चाहें, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें, पैसा सब जगह है। बट हाँ, अगर आप बात करें तो ऑफकोर्स, क्योंकि एमएनए एक सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चलता है, जिसको मतलब एवरी सेकंड थर्ड पर्सन हु कम टू मी या तो आईपीआर बोलेंगे या एमएनए बोलेंगे बाय डिफॉल्ट। तो ये फील्ड्स होती हैं, थोड़ी सी अट्रैक्टिव होती हैं, इसलिए लोगों को लगता है ज्यादा है, बट बैकएंड में सारी ही टीम्स काम कर रहे होते हैं। लॉकडाउन में मुझे लगा कि शायद रियल एस्टेट टीम्स नहीं काम कर रही होंगी, बट आई गॉट टू नो कि मेरे फ्रेंड्स जो रियल एस्टेट टीम्स में थे, फर्म्स में, वो भी लेट नाइट्स तक लेट शिफ्ट्स कर रहे थे, बिकॉज देयर वाज अ गुड अमाउंट ऑफ वर्क हैपनिंग। तो लॉ में अगर आपके पास नॉलेज है एंड स्किल्स है, कॉम्बिनेशन, आप कहीं भी ज्वाइन करेंगे, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। Brilliant. I mean, last 3-4 minutes में I think पूरा लॉ का ज्ञान मिल गया मेरे को definitely. So out of curiosity, मेरे को ये जानना है कि जैसे आपने बताया राइट कि डिग्री मिल गई राइट, उसके बाद आई थिंक लॉ
का सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है कि प्रैक्टिकल नॉलेज आना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाट आई हैव फेल्ट। मैंने भी कोर्ट के जब चक्कर लगाए हैं, तो जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत आगे है। लाइक इंसान की परख, डिस्प्यूट्स की परख, ह्यूमन नेचर की परख, राइट। और फिर उसमें फिर डेफिनेटली जो लॉ के अंदर चेंजेस आते हैं, लॉ को कैसे यूज करते हुए आपको केसेस आगे ले जाना, राइट। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक कितने साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलना चाहिए ताकि आप एक स्पेसिफिक डोमेन पकड़ सके? जैसे मुझे एनवायरनमेंट में जाना है, राइट। तो मैं मेरे 3rd ईयर में या फिर 4th ईयर में कितने साल का एक्सपीरियंस लूं कि मैं उसके अंदर एक ठीक ठाक स्पेशलाइजेशन पकड़ लूं? ओके, सो शशांक, लॉ स्कूल का करिकुलम इस तरीके से डिजाइन होता है कि हर सेमेस्टर के बाद आपको 1 मंथ का ब्रेक मिलता है। एंड अगर आप वो 5 साल डेडिकेटेडली अपना प्रोफाइल बनाने में फोकस करें, लाइफ भी पूरी एंजॉय करें, एट द सेम टाइम गुड एक्सपीरियंस ले इंटर्नशिप्स का, तो वो सफिशिएंट होगा टू सिक्योर अ गुड जॉब। ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और नॉलेज, दोनों चीजें हमारी फील्ड में ऐसी होती है कि कभी खत्म नहीं होती। राम जेठमलानी सर बिल्कुल 90s की एज तक भी पढ़ते ही थे और बोलते थे कि अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, स्टूडेंट ही हूँ, राइट। दूसरा चीज, एक शशांक, आजकल अब ये डिपेंड इस पे भी करता है कि आपका सीनियर कौन है और उनके पास कितना टाइम है आपको गाइड करने। बिकॉज लॉ में मोस्टली यू डू नॉट, मतलब सीनियर्स मेंटरशिप के लिए आपको हायर नहीं करते। You learn while assisting them, you learn during the process. So उसमें क्या होता है, अगर उनके पास उस तरीके का क्लाइंट अभी है, उस तरीके का मैटर चल रहा है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी सीखने की मिल जाती है। अब अगर उन्होंने आपके आने से जस्ट पहले वैसा कुछ मैटर कंप्लीट किया और आपके जाने के बाद उनके पास वैसा मैटर है, तो ऑब्वियसली उनकी एक्सपर्टीज उस फील्ड में होगी, बट आपको लर्निंग के लिए नहीं मिलेगा। तो आजकल स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन काफी सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रैक्टिकल कोर्सेज करा रहे हैं। एक तरीका वो है कि अगर आप फाइनेंशियली, आपके सर्कमस्टांसेस आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप कोई ऐसा कोर्स कर लीजिए जहाँ पे आपको एक मेंटर पे डिपेंडेंट नहीं होगा कि क्या पता लक बेस्ड कि क्या वो मुझे सिखा दे या नहीं सिखाए। एक तरीका ये हुआ सीखने का। दूसरा चीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग की सबकी कैपेबिलिटीज, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, बैकग्राउंड, टाइमिंग सब कुछ सेम नहीं होती, सर्कमस्टांसेस। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि 4 से 5 कोई भी प्रैक्टिकल चीजें उस फील्ड से रिलेटेड, जो कि हम गूगल करके भी जान सकते हैं कि इस फील्ड से रिलेटेड लीगल चैलेंजेस क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे जोमेटो में काम करने में इंटरेस्ट है, मैं चेक कर सकता हूँ गूगल पे कि लीगल चैलेंजेस एक फूड टेक सेक्टर से रिलेटेड क्या होंगे। या माना मुझे किसी गेमिंग कंपनी में काम करना है, तो मैं चेक कर सकता हूँ गूगल पे कि लीगल चैलेंजेस गेमिंग सेक्टर के क्या क्या हो सकते हैं। उनमें से 4-5 बेसिक चीजें जो है, मैं डिफरेंट लॉ, क्योंकि आजकल हम लॉयर्स को एज प्रोफेशनल्स एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं होता, तो फर्म्स अच्छा। क्या करती हैं, अपनी वेबसाइट्स पे गुड क्वालिटी आर्टिकल्स लिखती हैं, ताकि जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट हो उसको ये इंडिकेशन मिल सके कि भाई इस टॉपिक पे अगर ये नॉलेज शेयर कर रहे हैं, मतलब ये मुझे भी एडवाइस कर पाएंगे। तो आप वो बड़ी बड़ी जो लॉ फर्म्स हैं इंडिया की, उनकी वेबसाइट से वो आर्टिकल्स के थ्रू नॉलेज गेन कर सकते हैं। थोड़ा सा शशांक, पैंडेमिक में बिकॉज मोस्टली प्लेटफॉर्म्स अपने कोर्सेज बेचना चाह रहे थे, तो प्रैक्टिकल स्किल 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 इतना ज्यादा वर्ड मतलब कमर्शियलाइज हो चुका है कि अब ये ना ओवर यूज हो चुका है। एंड जिसकी वजह से जो नॉलेज है वो चीज थोड़ी सी पीछे हो चुकी है, कि बच्चों को लगता है बस अभी स्किल ही डेवलप करना, बट विदाउट नॉलेज स्किल इज नॉट पॉसिबल। स्किल आपका मेंटर जहां पे भी आप जॉब करेंगे, वहां पे ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस प्रोफाइल टाइम यू विल बी एबल टू लर्न, बट नॉलेज तब नहीं गेन कर पाओगे ना। जो चीज बेसिक क्लास में सिखाई जाती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट की 3 क्या मेन क्लॉजेस होने चाहिए, पहले 2 लोगों में एक ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए और एक वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए। अब बच्चे कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग सीखने पहले चले जाते हैं, लेकिन ये बेसिक भूल जाते हैं कि व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए अगर नॉलेज पे जितना ज्यादा फोकस किया जाए, बिकॉज वो नॉलेज आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। एंड लॉ में एक ब्यूटीफुल चीज ये भी है कि सब्जेक्ट्स आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक जरूर होते हैं। मुझे लेबर लॉ कतई नहीं पसंद था कॉलेज में, मतलब एक सब्जेक्ट जिससे हम सब भागते थे वो लेबर लॉ था। अब लॉ फर्म ज्वाइन किया, फर्स्ट वीक में सीनियर ने बोल दिया समाने का पूरी कंप्लायंस लिस्ट बनाओ कि एक मेट्रो का प्रोजेक्ट बनाना है, तो क्या क्या हमें अप्रूवल्स चाहिए होंगे। मैंने इतने लेबर लॉज एग्जिस्ट भी करते हैं मुझे पता ही नहीं था, पहले नेशनल लेवल पे फिर स्टेट लेवल। छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, अगर मेट्रो नीचे से जा रही है अंडरग्राउंड, तो वहां से पानी की लाइन जाएगी,
टेलीफोन की लाइन जाएगी, उन सब अथॉरिटी से आपको अप्रूवल लेना है. देयर इज अ लॉ बुक विच इज सेइंग लाइक ईच एंड एवरी अथॉरिटी. ऊपर से जा रही है मेट्रो की लाइन और कोई हेरिटेज बिल्डिंग के आसपास से जा रही है, तो भी एक लॉ है जहाँ पे लिखा है कि आपको अथॉरिटी से अप्रूवल चाहिए. तो इस तरीके से मतलब नॉलेज अगर है तो प्रैक्टिकल स्किल्स आप विद टाइम सीख सकते हो, बट विदाउट नॉलेज स्किल्स भी शायद डेवलप नहीं कर पाओ. ब्रिलियंट समानिका. समय की थोड़ी सी वो डिफिकल्टी है, बट थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग इन सच डिटेल्स. मैंने कभी किसी भी गेस्ट को इतना डिटेल में जाते नहीं देखा है. Thank you very much for getting in so much detail and explaining everything in such a short time. You explained and covered so many things. Thank you very much. I am sure हमें एक और एपिसोड तो डेफिनेटली शूट करना पड़ेगा डिटेल में बच्चों के लिए. Really thankful to you, Samanika. Thank you for joining us. Welcome.